Hello, everyone. Welcome to Elite's Grid. So, today we will discuss assumptions, which is an important element of the critical reasoning part of GMAT. So, first of all, let's understand what is an assumption. Now, okay, in GMAT, it is very important part of critical reasoning. But what is the meaning of assumption? When it comes to our day-to-day life, assumption means when we accept something without really questioning it, we assume it to be true. For example, your teacher tells you the teacher tells the students that you should study this, don't study this. There are certain things that you should cover. Don't study all these things, they are not important. What is a teacher assuming? The teacher is assuming that the student will follow the advice. That is an implied assumption. The assumption is the hidden base of your conclusion or your argument, that the teacher is advising the student, so it is the teacher is assuming that students will follow the advice. For example, nowadays, because elections are very near, so the election commission comes with the model code of conduct. So that code of conduct, is meant for political parties. Now the commission assumes that the parties will be following the code of conduct. Otherwise, why would it come with it if they don't have to follow? So assumptions are like, some poster is there. So that poster is giving you a message, is giving you an instruction. So you assume it is assuming that you would read it. So these are, day-to-day assumptions that we make. When it comes to questions specifically in GMAT, what kind of assumptions you will be having? There will be a question. Question may you will be given some information, which we call as argument. That can be any fact, that can be any opinion, that can be any evidence, any event, anything. And based on that, then suddenly there will be a conclusion. तो assumption क्या होगी? Assumption will be the missing link between these two. कि suddenly हमने कोई point अपना raise किया, ये चीजें ऐसे ऐसे होती है, and then we come to a conclusion. For example, Rahul comes in Merck in college. फिर हम कह रहे हैं conclusion, ये हमारा कुछ फैक्ट था या एविडेंस कि राहुल तो भाई मर्क में आता है, एंड देन वी आर कमिंग अप विद द कंक्लूजन दैट ही इज वेरी रिच. तो हमने मर्सिडीज को रिच से मतलब वी आर सेइंग दैट ही कम्स इन दिस पर्टिकुलर कार एंड देन वी आर सेइंग ही इज रिच. तो कोई लिंक होना चाहिए ना. एकदम से हमने एक स्पेसिफिक कार का नाम लिया एंड देन वी आर सेइंग दैट पर्सन इज रिच. सो एक अजम्पशन है इसमें कि Mercedes, if you're owning a Merc, that means you are rich. So ownership of this particular car actually shows that you have great wealth. So that is the link. तो assumptions वही होती हैं. आपको एक चेन होती है, this will happen, this is there, this will happen, it means this. And then when you're coming to conclusion, तो हम ये देखते हैं कि कैसे आर्ग्यूमेंट से कंक्लूजन को एक एक पॉइंट हमें बताया कि देखो ही कम्स इन दिस पर्टिकुलर कार एंड देन वी शिफ्ट टू कंक्लूजन. सी somebody is giving you like, okay, your friend is giving you flowers, uh, giving you chocolates, and then you say that my friend cares a lot about me. तो आपने फ्लावर्स और मतलब चॉकलेट्स की बात की, मुझे फ्लावर्स देते हैं, चॉकलेट देते हैं, एंड देन ऐसे शी केयर्स फॉर मी. तो मतलब समवेयर वी आर लिंकिंग गिविंग ऑफ दिस फ्लावर्स और these चॉकलेट्स एज अ टोकन ऑफ शोइंग योर केयर. कुछ तो लिंक होना चाहिए. यही अजम्पशंस होती हैं कि सडनली हम कोई बात कह के फिर एक कंक्लूजन पे जंप कर जाते हैं. तो जो उन दोनों चीजों को लिंक करे, जो उस गैप को ब्रिज करे, दैट इज अजम्पशन. एंड अनदर वे टू अंडरस्टैंड अजम्पशन इज लिंक तो कर रहे हैं, बट लिंक में भी देयर विल बी सर्टेन other things that you have to take care of. Just like in case of any building, you have a foundation. एक building है, it will stand upon a foundation. ऐसे ही कोई conclusion अगर है, तो उसकी जो foundation होती है, वो assumption होती है. Just like if you will remove this foundation, this building cannot exist. It will collapse. Similarly, if this assumption becomes negative, इसको हम ignore करें कि ऐसा नहीं होता, we negate it, और कंक्लूजन भी फिर कोलैप्स हो जाएगा अगर वो सचमुच की assumption है. तो अगर कोई ऐसा केस है जहां पर हमने किसी ऑप्शन को अगर हमने नेगेटिव किया या उसको निगेट किया, उसके बाद हमारा कंक्लूजन इनवैलिड हो जाता है, दैट इज आवर assumption. पर अगर ऐसी पॉसिबिलिटी है कि हम
अजम्पशन वो जो हमें ऑप्शन है उसको निगेट भी कर रहे हैं, नेगेटिव कर रहे हैं कि व्हाट इफ सच अ थिंग डजंट हैपन, अगर वो ऐसे एग्जिस्ट नहीं करती है तो क्या हमारा कंक्लूजन एग्जिस्ट करता है? अगर वो करता है तो वो हमारा राइट आंसर नहीं है, दैट इज नॉट द assumption we require, दैट इज अ रॉन्ग आंसर। व्हाई? बिकॉज अगर किसी चीज के ना होने से कोई ऐसी पॉसिबिलिटी, ऐसा लिंकिंग पॉइंट, अगर हमारा कंक्लूजन तब भी वैलिड है। कई बार क्या होती है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, मतलब अलग अलग वे में आप इंटरप्रेट कर सकते हो उस ऑप्शन को। अगर एक पॉसिबिलिटी में भी ऐसा हो रहा है ना कि देयर कैन बी मेनी पॉसिबिलिटीज, एक पॉसिबिलिटी में भी ऐसा हो रहा है कि दैट इज नॉट ट्रू और फिर भी कंक्लूजन वैलिड है, देन दैट इज नॉट योर assumption. Assumption means this only कि if that option you negate, then your conclusion also becomes invalid, then that is your assumption. So it is not going to be just like, foundation is not openly seen, ऐसे assumption भी एक, most of the time it will be a hidden statement, it won't be explicitly given in the question, बिकॉज ऑफकोर्स इट इज अ मिसिंग लिंक। हमने एक कार का नाम लिया फिर हमने उसे कह दिया वो रिच है, तो वो कोई मिसिंग लिंक है कि उस कार से हमने रिच को ज्वाइन किया, दैट इज आवर अजम्पशन। और फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। जैसे देर आर सर्टेन ग्रैंड पेरेंट्स, कोई ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं, का बहुत बड़ा फार्म हाउस है, उसमें बहुत सारे ट्रीज है, दे हैव एन ऑर्चर्ड, वहाँ पे बहुत सारे ट्रीज है, एंड दिस ईयर बहुत ज्यादा एप्पल्स ग्रो हुए, लेट्स इमेजिन, ठीक है, बहुत ज्यादा एप्पल्स ग्रो हुए। और फिर हम लोग एक अच्छा कह रहे हैं, हेंस अब क्या होगा, इस सीजन बहुत ज्यादा एप्पल्स आए, हेंस उनके ग्रैंड चिल्ड्रन उन्हें मिलने आने वाले हैं। अब हमने ज्यादा एप्पल्स की ग्रोथ को अराइवल ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन से रिलेट कर दिया। देर इज अ मिसिंग लिंक सडनली, मतलब आप बोल रहे हो कि एप्पल्स बढ़ गए हैं एंड देन यू आर सेइंग ग्रैंड चिल्ड्रन आने वाले हैं। मतलब कोई चीज ऐसी होनी चाहिए जो इन दोनों को लिंक करे, लाइक द ग्रैंड चिल्ड्रन लव एप्पल, द ग्रैंड चिल्ड्रन दे लाइक एप्पल और दे डोंट डिसलाइक एप्पल, इस वे में भी दिया होता है समटाइम्स। तो दिस इज हाउ वी कैन से कि इन दोनों में लिंक है, ये assumptions हो जाएगी। तो दिस इज assumption. Now how you have to solve any question, in whenever you're reading the question, read it very properly. तो फर्स्ट स्टेप होगा रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली। उसमें क्या होगा, यू शुड नो कि अच्छा क्या उनका आर्ग्यूमेंट है, क्या उनका फाइनल कंक्लूजन है जिसको हमें सपोर्ट करना है, जिसके लिए हमें अजम्पशन ढूंढनी है। तो वो आपको पता होना चाहिए कि अजम्पशन ढूंढने किसके लिए है, किस बात को सपोर्ट करना है, ये समझ गए? देन यू हैव टू फाइंड मिसिंग लिंक या गैप, मिसिंग लिंक या गैप। जैसे when you will be reading a question, you can make a small flow chart कि अच्छा this is happening, जैसे you know uh, the grandparents are having a farmhouse, इस बार एप्पल्स बहुत ज्यादा हैं, so will come children will come। सो यहाँ पे है लिंक एक, मुझे ये मतलब क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज दिस कंक्लूजन, और यहाँ पे सडनली हम लोग एप्पल्स बढ़ने से चिल्ड्रन के अराइवल पर आ गए, देयर इज अ मिसिंग लिंक। कोई असम्पशन ऐसी नहीं चाहिए जो इन दो बातों से रिलेटेड हो। इससे पहले की जो बातों, बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, इससे पहले की और बातें कर रहे होंगे, ग्रैंड पेरेंट्स के और भी फार्म्स हैं, और भी ट्रीज हैं, उनका भी हार्वेस्ट अच्छा है, चिल्ड्रन के अलावा कोई और भी हो सकता है, या सिर्फ इसके बाद की बातें कर रहे होंगे, चिल्ड्रन की स्कूल की छुट्टियां या कुछ ऐसे। बट द पॉइंट इज, जो दो इन बातों को लिंक करेगा वही अजम्पशन होगा। इसे सिर्फ इसके बारे में अकेली कोई और बातें करे जा रहे हैं, या सिर्फ इस पॉइंट के बारे में कोई और बातें करे जा रहे हैं, दैट वोंट बी अजम्पशन। ये दोनों को लिंक करना चाहिए। तो आपने मिसिंग लिंक फाइंड कर दिया। अब एलिमिनेट द ऑप्शंस, एलिमिनेट द ऑप्शंस दैट आर नॉट रिलेटेड टू दिस गैप, विच आर नॉट रिलेटेड टू दिस गैप, जो दोनों चीजों को लिंक करके जो आपको उसका सही आंसर दे पाए, वो चीज हमें चाहिए, जो बिल्कुल एक कोई भी, या तो कभी जनरल स्टेटमेंट है या पर्टिकुलर सिर्फ एक बात के बारे में उसे इस बात से जोड़ नहीं रही है, तो वो भी नहीं होगी। तो वैसे ऑप्शंस को हम एलिमिनेट कर देंगे, फिर मोस्ट ऑफ द टाइम मैक्सिमम ऑप्शंस तो चले जाएंगे, कभी कभी एक बचता है, दो बचते हैं, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है तब दो से ज्यादा होंगे। उस केस में देन यू विल अप्लाई टेस्ट ऑफ नेगेशन। उसमें क्या होगा, अब दो, मान लो दो स्टेटमेंट्स हैं, दोनों इस चीज को लिंक कर रही हैं, ठीक है, ऑप्शन सी भी ऑप्शन डी भी है। नाउ हम अब उस स्टेटमेंट को उल्टा करके देखेंगे, व्हाट इफ दैट थिंग डजंट हैपन। अगर वो कह रहे हैं दिस थिंग इज लाइक दिस, सो व्हाट इफ दिस थिंग इज नॉट लाइक दिस, उसको ऑपोजिट करके देखेंगे। अगर उसको उल्टा करने से, उसके ना होने से, मतलब अगर वो कह रहा है सी कि ये चीज पक्का होनी चाहिए, हम कह दें नहीं ऐसा नहीं है, तो उसके ना होने से जो हमारा कंक्लूजन था
वो भी इनवैलिड हो जाएगा, उसके बिना मतलब नहीं आ सकता। अगर वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती तो ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, हम उधर तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो वो अजम्पशन है। अगर उसको हटाने से, मान लो ऑप्शन डी को हमने निगेट भी कर दिया, इग्नोर भी कर दिया, मान लो ये जो चीज कह रहा है ऑप्शन डी ये होता ही नहीं, उसके बाद भी हम कंक्लूजन तक आ पा रहे हैं, तो फिर वो हमारी अजम्पशन नहीं है। रिमेंबर दिस स्टेटमेंट, रिमेंबर दिस रिलेशंस। अगर स्टेटमेंट को जो तुम्हें ऑप्शंस दिया उसको निगेट करने से कंक्लूजन भी इनवैलिड हो गया, मतलब इसके ना होने से हम कभी कंक्लूजन, इस कंक्लूजन पर आ ही नहीं सकते, कंक्लूजन इसमें बहुत डिपेंडेंट है। तो वो हमारा आंसर होगा। अगर उसको निगेट करने के बाद भी कोई पॉसिबिलिटी है कि कंक्लूजन तब भी वैलिड है, चाहे वो चीज हो चाहे वो चीज ना हो, तब भी कंक्लूजन वैलिड है, तो मतलब कंक्लूजन इस पे डिपेंडेंट ही नहीं है, उसको इसकी जरूरत ही नहीं है, ये उसकी अजम्पशन है ही नहीं। सो दैट इज द आंसर। नाउ अनदर थिंग, ये जो निगेशन वाला टेस्ट होता है, डेफिनेटली अ वेरी क्रिटिकल टेस्ट। यू डोंट हैव टू अप्लाई ऑन ऑल द ऑप्शंस, बहुत टाइम वेस्ट होगा। 5 ऑप्शंस पे अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सबको नेगेटिव कर करके देख रहे हो क्या इसके बिना मेरा कंक्लूजन रहेगा, क्या इसके बिना मेरा कंक्लूजन रहेगा। ऐसे करोगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा एग्जाम में। एंड अनदर थिंग, कभी कभी सही आंसर भी नहीं मिलेगा। वाई? बिकॉज हमने पहली चीज क्या करी है, जो नॉन रिलेटेड थिंग्स है उनको एलिमिनेट करो। जो चीज रिलेटेड ही नहीं है, तो उसके होने ना होने से ना वैसे भी कंक्लूजन पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो हमें टेस्ट अच्छी तरह हो नहीं पाएगा हमारा, तो हमें आंसर मिलेगा नहीं। बिकॉज ओनली इफ इट इज रिलेटेड देन वी कैन से ओके, कंक्लूजन को इसकी जरूरत है या नहीं है। अब वो रिलेटेड ही नहीं है तो वो है या नहीं है, क्या फर्क पड़ता है, उससे हमें आंसर मिलेगा भी नहीं। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। आई एम टेलिंग यू अगेन, दिस इज द सीक्वेंस दैट यू विल बी फॉलोइंग। पहली चीज, रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली, फाइंड आउट क्या कंक्लूजन है, किसे सपोर्ट करना है, किस, या हमें किसे, किसके अगेंस्ट है, क्या बोल रहे हैं, यू शुड नो। सेकंड, लिंक, कि कैसे हम जंप कर गए एक बात से दूसरे कंक्लूजन पर जंप कर गए, तो उन दोनों को लिंक करना चाहिए। फिर थर्ड, जो ऑप्शंस लिंक नहीं कर रहे हैं उन दोनों को, उनको एलिमिनेट कर देंगे। फोर्थ, फिर जो बचे हुए हैं उसमें से वी विल टेस्ट द निगेशन टेस्ट, कि किसको नेगेटिव करने से कंक्लूजन भी इनवैलिड हो जाएगा, जिसके ऊपर कंक्लूजन टिका हुआ है, जो उसकी फाउंडेशन है। जो फाउंडेशन होगी वही हमारी assumption होगी। So that would be an answer. Let's understand through a question. Dinosaur expert. Some paleontologists have claimed, who are paleontologists who study fossil fuels and study about life based on them and other things. So fossil fuels में जो engaged होते हैं. Some paleontologists have claimed that birds are descendants of a group of dinosaurs called dromaeosaurs. They appeal to the fossil record, which indicates that dromaeosaurs have characteristics more similar to birds than to most dinosaurs. But there is a fatal flaw in their argument. The earliest bird fossils that have been discovered date back tens of millions of years farther than the oldest known dromaeosaur fossils. Thus, the paleontologist claim is false. अब इसमें दो लोग इन्वॉल्व है, एक तो है डायनासोर एक्सपर्ट और एक है पेलियोंटोलॉजिस्ट। क्वेश्चन क्या है, यू हैव टू सी कि एक्सपर्ट का आर्ग्यूमेंट किस पे में, हमें एक्सपर्ट को सपोर्ट करना है, इसको नहीं सपोर्ट करना है। तो व्हाट इज द क्वेश्चन सेइंग, क्वेश्चन इज सेइंग जो ये पेलियोंटोलॉजिस्ट है, एज पर देम these birds are descendants, birds are, the future generations या later on generation of these dinosaurs. एक specific dinosaurs है dromaeosaurs, और उन डायनासोर्स का ही डिसेंडेंट बर्ड है फ्यूचर में, वो बर्ड्स उन्हीं से आए हैं, बिकॉज दे हैव मेनी थिंग्स कॉमन। उनके कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत कॉमन है, फीचर्स उनके, बिकॉज दे हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। ये पेलियोंटोलॉजिस्ट कह रहा है। अब एक्सपर्ट जो है, डायनासोर एक्सपर्ट, वो इसको गलत साबित कर रहा है, नो यू आर रॉन्ग। और व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ द एक्सपर्ट, कि हाउ कैन दे बी द डिसेंडेंट्स, उनकी फैमिली, फ्यूचर फैमिली से कैसे हो सकते हैं, उनकी फैमिली का पार्ट कैसे हो सकते हैं, बिकॉज जो उनके फॉसिल्स हैं, जो उनके फॉसिल्स डिस्कवर हुए हैं, जो फॉसिल्स की डिस्कवरी की डेट है उसमें इतना गैप है, टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ इयर्स, मतलब इतना गैप है। इनके ओल्डेस्ट फॉसिल से भी वो उससे भी पहले के हैं, तो वो उनके डिसेंडेंट्स कैसे हो सकते हैं, दिस फॉसिल्स जस्ट शो समथिंग एल्स। तो व्हाट इज हिज आर्ग्यूमेंट, what is the argument of expert, that you paleontologist you are wrong, because जो birds के और जो जो ये ड्रोमियोसॉर्स के फॉसिल्स हैं, इसमें तो बहुत ज्यादा गैप है, टेंस ऑफ मिलियंस है, तो ये रिलेटेड कैसे हो सकते हैं, ये एक फैमिली के हो ही नहीं सकते हैं, ये तो बहुत पहले आ गए थे, बहुत बाद में है, देयर इज अ लॉट ऑफ गैप बिटवीन देम।
सो यू आर रॉन्ग। तो फाइनल इसका कंक्लूजन क्या है? व्हाट इज द कंक्लूजन? दैट these paleontologists are wrong, ये linked नहीं है। या फिर another way to write this कि birds are not linked to dinosaur। तो जो ऊपर बात हो रही थी कि birds तो dinosaurs की descendants है, that is wrong। ऐसा कुछ नहीं है, उनके fossils में millions of years का difference है, तो कोई link नहीं है उनमें। भले cactus थी, तो cactus की बात हुई, expert अपनी जो conclusion लेकर आया है कि they are not related, it is based on the time, the age of, the time at which those fossils have been discovered, fossils, bird के fossils और डायनासोर के fossils के बेसिस पे वो ये कंक्लूजन पे आए हैं। तो वी हैव टू फाइंड एन अजम्पशन इस वाले कंक्लूजन की। तो हमें ये देखना है कि देखो व्हाट इज द मिसिंग लिंक। पहला पहला स्टेप था कि क्वेश्चन समझ ले अच्छी तरह। अगर क्वेश्चन अच्छी तरह नहीं समझा तो हो सकता है आप इसको सपोर्ट करने लग जाओगे, बट क्वेश्चन अच्छी तरह समझ ले, इसको सपोर्ट नहीं करना, इसके अगेंस्ट आना है। सपोर्ट किसको करना है? एक्सपर्ट को। सेकंड थिंग, सेकंड स्टेप क्या था? मिसिंग लिंक फाइंड करो। मिसिंग लिंक ये है कि हमने फॉसिल्स की डिस्कवरी के जो टाइम था उससे हम एग्जैक्ट अब कंक्लूजन पर आ गए कि ये तो लिंक्ड ही नहीं है, बर्ड्स और डायनासोर का कुछ नहीं है, बर्ड्स आर नॉट डिसेंडेंट्स ऑफ डायनासोर। तो जो हमारा आंसर होगा वो ऐसा होगा जो इसको इसके साथ लिंक करे। जो खाली कोई और चीजों के बारे में बातें कर रहा है वो नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे इसको इधर तक स्मूथली पहुंचाना है, एकदम सडन जंप के साथ नहीं पहुंचना है। तो कोई ऐसी चीज बीच में जो उनका गैप ब्रिज कर सके। आई हैव टू लुक फॉर दैट ऑप्शन। सो लेट्स सी कौन सा ऑप्शन है वो। Having similar characteristics is not a sign that types of animals are evolutionary related। ये बात कैरेक्टरिस्टिक्स के सिमिलर होने की और उसके बेसिस पर वो आने की, ये तो पेलियोंटोलॉजिस्ट कर रहे थे। जो हमारे डायनासोर एक्सपर्ट हैं उनका पॉइंट क्या है? हम मिसिंग लिंक फाइंड कर चुके हैं कि फॉसिल्स की डिस्कवरी टाइम के बाद हमने इस कंक्लूजन पर आए हैं। सिमिलैरिटी है या सिमिलैरिटी नहीं है उसके बेसिस पे हम इस कंक्लूजन पर नहीं आए हैं। फॉसिल्स, उन दोनों एनिमल्स, दोनों जो लिविंग बींग्स है उनके फॉसिल्स के बाद हमने कहा ओ दे आर नॉट लिंक। तो कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमारा कंजम्पशन लिंक नहीं हो सकती, क्योंकि हम फॉसिल्स के थ्रू उस कंक्लूजन पर आए हैं। तो हमारा पॉइंट फॉसिल्स से लिंक्ड होना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स वाला तो ऊपर वाला पॉइंट था। जो डायनासोर एक्सपर्ट था वो अपनी राय, उसने अपना ओपिनियन जो बनाया, अपना फाइनल कंक्लूजन, वो फॉसिल्स की डिस्कवरी के बाद बनाया। तो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हटाते फॉसिल्स वाले पॉइंट पे आते हैं। सो दिस हैज टू बी एलिमिनेटेड। बी, ड्रोमियोसॉर्स एंड बर्ड्स कुड हैव कॉमन एंसेस्टर्स। ये मतलब अज्यूमिंग इज अ टाइप ऑफ सपोर्ट करना, ये तो उल्टा जा रहा है। इट इज अगेंस्ट, ये तो पेलियोंटोलॉजिस्ट को सपोर्ट कर रहा है कि हाँ वो लिंक्ड है, और एक्सपर्ट कह रहा है पेलियोंटोलॉजिस्ट गलत है। तो पेलियोंटोलॉजिस्ट कह रहा है कि दे आर लिंक्ड, उनका कॉमन एंसेस्टर्स है, वो डिसेंडेंट्स हो सकते हैं, वो उस वे में जा रहा है। एक्सपर्ट इस बारे में नहीं, एक्सपर्ट कह रहा है ये गलत है, वो लिंक्ड ही नहीं है। तो दिस इज ऑपोजिट ऑफ व्हाट वी वांट, ये ऑपोजिट चीज को सपोर्ट कर रहा है। वी कैन एलिमिनेट इट। Third, knowledge of dromaeosaur fossils and the earliest word fossils is complete। Now the first thing is, मैं unrelated options, third point यही था ना, unrelated, जो इस लिंक से रिलेटेड नहीं है, जो इस लिंक के अलावा कोई और बातें कर रहे हैं, आई हैव टू एलिमिनेट देम। तो ये एटलीस्ट फॉसिल्स की बात तो कर रहा है, वो हम नेगेटिव वाला टेस्ट बाद में लगाएंगे। फॉसिल्स की तो बात कर रहे हैं ना, फॉसिल्स से कंक्लूजन पर पहुंचे हैं ना, तो वी कैन सी कि हाँ इसको अभी एलिमिनेट नहीं करते, इसको वी विल कीप। डी, known fossils indicate relative dates of origin of birds and dromaeosaurs। ये भी fossils और उनकी डेट के बारे में बात कर रहे हैं, इसको भी अभी रखते हैं, एलिमिनेट नहीं करते। Dromaeosaurs are dissimilar to birds in many significant ways। Again, we are not talking about their similarities or dissimilarities। वो paleontologist अपने conclusion पर आया था उनके थ्रू। हमें सपोर्ट करना है डायनासोर एक्सपर्ट को। डायनासोर एक्सपर्ट फॉसिल्स के बेसिस पे कंक्लूजन पे आया है, तो मुझे लिंक फाइंड करना है फॉसिल से हम इस कंक्लूजन पर कहा कैसे पहुंचे, कैसे जंप कर गए, ना कि सिमिलैरिटी या डिसिमिलैरिटी से हम कंक्लूजन पर कैसे पहुंचे कि वो सिमिलर है या नहीं। सो अगेन दिस इज आउट। सो आई जस्ट हैव टू ऑप्शंस नाउ, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। अब हम देखेंगे अपना लास्ट स्टेप विच इज द टेस्ट ऑफ नेगेशन। किसको कैंसल करने के बाद मेरा कंक्लूजन इनवैलिड हो जाता है। व्हाट इज माय कंक्लूजन? व्हाट इज द कंक्लूजन? दैट दीज पेलियोंटोलॉजिस्ट क्लेम इज फॉल्स। मतलब पेलियोंटोलॉजिस्ट गलत हैं, बर्ड्स और ये डायनासोर ये लिंक्ड नहीं है। मुझे ऐसी चीज चाहिए जो मेरे इस कंक्लूजन को, मतलब मेरा कंक्लूजन उस पर डिपेंडेंट है। अगर वो ना हुई तो मेरा ये कंक्लूजन भी टिक नहीं पाएगा। सी, नॉलेज ऑफ ड्रोमेयोसौर फॉसिल्स एंड द अर्लीस्ट बर्ड फॉसिल्स इज कंप्लीट। ये जो फॉसिल्स की नॉलेज है ये कंप्लीट है।
ना बहुत बार ऐसे क्वेश्चन ऑप्शंस ध्यान से सुना करो या रीड करा करो, कंप्लीट, बेस्ट, बहुत एक्सट्रीम्स जो होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर नॉट गोइंग टू बी करेक्ट। ऑल, नेवर, नो वन, एवरीवन, थोड़ा सा इनको रीड करना चाहिए प्रॉपरली, ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है इनके ना होने की। अब ये वाला ऑप्शन है जो कह रहा है कि नॉलेज कंप्लीट है, उन फॉसिल्स के बारे में नॉलेज कंप्लीट है ना, इसको उल्टा करके देखते हैं, ठीक है? इसको उल्टा करके देखते हैं, मतलब नॉलेज कंप्लीट नहीं है, नॉलेज जो है वो कंप्लीट नहीं है। अब व्हाट इज नॉलेज? फॉसिल्स की नॉलेज तो बहुत ज्यादा, मतलब एम्बिगुअस हो सकती है। व्हाट इज नॉलेज? उसमें वो किस प्रेशर पे, बिकॉज दे आर फॉर्म्ड अंडर पर्टिकुलर प्रेशर, फॉर्म्ड अंडर पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ रॉक, सेडिमेंट्री रॉक थे या मेटामॉर्फिक रॉक्स थे, कौन से टाइप ऑफ रॉक्स में वो थे? दो मोस्ट ऑफ द टाइम दे फाउंड इन सेडिमेंट्री ओनली, बट यस उसमें भी बहुत अलग वेरिएशन हो सकती है, कौन सी प्लेस से वो रिलेटेड है, उनका टाइम क्या है, उनका कॉम्पोजिशन, केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, फिजिक, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। अगर मुझे उसमें से एक दो चीजें नहीं पता, लेकिन मुझे उनका टाइम बहुत श्योर है, तो क्या मेरा कंक्लूजन इनवैलिड हो जाए? कंक्लूजन तब भी वैलिड होगा, इवन इफ आई डोंट नो एट विच प्रेशर दे वर फॉर्म्ड। तो इसका मतलब मेरी नॉलेज तो कंप्लीट नहीं है, माई नॉलेज इज नॉट कंप्लीट, तो मैंने इसको निगेट कर दिया बिकॉज मुझे प्रेशर और टेम्परेचर का नहीं पता है, माई नॉलेज इज नॉट कंप्लीट, बट आई नो द टाइम। मुझे इतना पता है, टाइम मेरा 100% श्योर है कि किस टाइम के बने हुए, ठीक है? मुझे टाइम श्योर है कि ये इस टाइम का ये बर्ड है, ये इस टाइम का डायनासोर है। मुझे बाकी चीजें नहीं पता, पर मुझे टाइम पता है, माई नॉलेज इज नॉट कंप्लीट, बट जो सबसे क्रिटिकल पॉइंट है वो मुझे पता है। तब भी तो मेरा कंक्लूजन वैलिड ही है ना, मैं तब भी तो कह सकती हूँ उनके बीच में इतना गैप है टाइम का, वो रिलेटेड नहीं है, वो एक फैमिली से नहीं है, तो बहुत गैप है। तो मेरी नॉलेज कंप्लीट ना होते हुए भी मेरा कंक्लूजन वैलिड है। तो ये अजम्पशन कैसे हो सकती है? अजम्पशन तो वो नहीं चाहिए जिसको नहीं पता तो कंक्लूजन भी खत्म हो जाए, विच इज, लेट्स चेक डी। जो फॉसिल्स हैं वो रिलेटिव डेट्स ऑफ ओरिजिन बताते हैं। अब क्वेश्चन में सिर्फ हमें डिस्कवरी की डेट थी, अगर हम मतलब डिस्कवर यहाँ हुए, अब देखो, जब डिस्कवरी हुई है, अब किसी भी एनिमल का ये पूरा लाइफ स्पैन है यहाँ पर, मतलब उस स्पीशीज का ओरिजिन है, नॉट टॉकिंग जस्ट वन एनिमल, बट स्पीशीज का ये ओरिजिन है। कुछ सालों बाद कुछ एवोल्यूशन है, कुछ सालों बाद कुछ एवोल्यूशन है, स्पीशीज चलते रह रहे हैं, मे भी यहाँ पर खत्म हो गई। ऐसे दूसरा स्पीशीज भी है, इसका अपना अलग टाइम है, अलग 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 इवेंट्स में ओरिजिन ये है। हो सकता है मुझे इसका फॉसिल यहाँ मिला हो सकता है इसका फॉसिल मुझे इस टाइम पे मिला हो, तो भी सिर्फ फॉसिल की डिस्कवरी से मैं कंक्लूजन पे नहीं आ सकती। बट अगर मुझे वो ओरिजिन का टाइम मिल गया, कि जो फॉसिल्स की जो डेट है वो उनके ओरिजिन को बताती है, कि मतलब ये जो डेट मिली है मुझे, जो ये टेंस ऑफ मिलियन ईयर्स की है, ये इनके ओरिजिन को दिखा रहे हैं कि हाँ बर्ड का ओरिजिन। पहले क्वेश्चन, ना दिस इज वन थिंग, आपको लग सकता है ये तो क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन था, क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं गिवन था, क्वेश्चन में ओरिजिन की डेट के बारे में बात नहीं, क्वेश्चन में सिर्फ ये हुई है डिस्कवरी की डेट, कि जब वो डिस्कवर हुए। अगर वो डिस्कवरी की डेट, जो जो फॉसिल्स है उससे मुझे उनके ओरिजिन की डेट पता चल जाती है कि बर्ड का ओरिजिन ये है, ड्रोमियोसोर्स का ओरिजिन की ये डेट है, तो फिर मेरा क्लेम, अगर मुझे इस नॉलेज डेट ऑफ ओरिजिन पता है तब मैं कंक्लूजन बता सकती हूँ, चाहे मुझे बाकी चीजें ना पता हो, पर मुझे ये चीज पता है तो मैं बता सकती हूँ ये इनके बीच में गैप बहुत ज्यादा है, दे आर नॉट लिंक, पैलेंटोलॉजिस्ट आर रॉन्ग। बट अगर मुझे ये डेट ही नहीं, मुझे ओरिजिन का पता ही नहीं, भले कोई भी डेट हो लेकिन मुझे ओरिजिन का नहीं पता, अब हम डी को कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है, हम डी को कैंसिल कर रहे हैं, कि मुझे उनके ओरिजिन का डेट नहीं पता है, कब बर्ड्स का ओरिजिन है, कब ड्रोमियोसॉर्स का ओरिजिन है, मुझे उनका डेट नहीं पता है, तो मैं इस कंक्लूजन पर कभी नहीं आ सकती कि उनमें बहुत ज्यादा गैप है दोनों के ओरिजिन में और इसलिए वो लिंक्ड नहीं है, तो मेरा कंक्लूजन भी खराब हो जाएगा, कभी टिक नहीं पाएगा। तो इसलिए यही वाली मेरी अजम्पशन है। तो व्हाट वाज द थिंग बिटवीन सी एंड डी? जब मैंने ऑप्शन सी को निगेट किया कि मेरे को पूरी नॉलेज नहीं है, 100 में से एक चीज ना पता होना भी तो इनकम्प्लीट नॉलेज ही होती है ना, पर उसमें से जो इंपॉर्टेंट चीज थी इस कंक्लूजन के लिए वो मुझे पता है। तो मतलब एक पॉसिबिलिटी हो सकती है इंपॉर्टेंट चीज नहीं पता थी, एक पॉसिबिलिटी हो सकती है इंपॉर्टेंट चीज पता थी, तो अगर वो वाली पॉसिबिलिटी जिसमें मुझे वो डेट वाली चीज पता थी, बाकी चीज की नॉलेज नहीं थी पर वो डेट की थी, तब तो मेरा कंक्लूजन तब भी वैलिड रहेगा, अगर मैं इसको नेगेटिव कर देती हूँ तब भी। तो इसका मतलब एक पॉसिबिलिटी तो है ही ना, चाहे मतलब यू कैन क्वेश्चन, वो वाली पॉसिबिलिटी तो हो सकती है जब मुझे इसके बारे में पता ही ना हो उसकी डेट के बारे में, लेकिन एक पॉसिबिलिटी ये भी तो हो सकती है ना कि डेट के बारे में पता है पर बाकी नॉलेज का, बाकी चीजों की नॉलेज नहीं है, तो सी को नेगेटिव करके फिर भी मेरा कंक्लूजन वैलिड रह जाएगा। तो अगर एक भी पॉसिबिलिटी ऐसी हो रही है ना कि निगेट करके उसे तब भी कंक्लूजन वैलिड रह रहा है, तो वो अजम्पशन नहीं है। पर डी में अगर मैंने इसे निगेट किया
तो कंक्लूजन वैलिड रह ही नहीं पाएगा, बिकॉज जब मुझे उनकी ओरिजिन की डेट नहीं पता तो मैं कैसे बताऊंगी कि वो इतनी अलग अलग टाइम स्पैन में ओरिजिन का हुआ है और दे आर नॉट रिलेटेड. तो डी इज द assumption. Without D, my question cannot survive. So, I'm just revising again जो प्रोसीजर हम फॉलो करते हैं. फर्स्ट थिंग, यू शुड नो कि किसको सपोर्ट करना है. डायनासोर एक्सपर्ट को सपोर्ट करना था, पेलियंटोलॉजिस्ट को नहीं करना था, इवन इफ देयर वर 2 points mentioned here. Second step was finding the gap और द मिसिंग लिंक. कि सडनली हमने फॉसिल्स की बात करी, उसके बाद हम कंक्लूजन पर आ गए. तो लिंक किस चीज को ब्रिज करेगा कि फॉसिल्स की डेट से, फॉसिल्स के बारे से हम एकदम से कंक्लूजन पर कैसे आए. तो कोई बीच की चीज होनी चाहिए. फिर तीन, जो भी चीजें इनसे रिलेटेड नहीं थी उसको मैंने एलिमिनेट किया. कैरेक्टरिस्टिक्स, नॉन कैरेक्टरिस्टिक्स, सिमिलर डिसिमिलर, उनको एलिमिनेट किया. सिर्फ फॉसिल्स के बारे में हमने बात की, दो ऑप्शंस को हमने सेलेक्ट कर लिया. फोर्थ, नेगेटिव करके देखा कि व्हाट इफ दिस थिंग डजंट एग्जिस्ट, अगर ऐसा ना होता तो. नेगेटिव करके देखा, जिसके ना होने से मेरा कंक्लूजन फिर भी टिका हुआ है, वो तब भी वैलिड है, तो मतलब मुझे इसकी जरूरत ही नहीं है, ये मेरी अजम्पशन ही नहीं है. बट जिसके ना होने से मेरा कंक्लूजन खत्म हो गया, उसके बिना वो सर्वाइव ही नहीं कर सकता, उसका कुछ अस्तित्व ही नहीं है, दैट इज माई अजम्पशन. So at the fifth step, you will get the answer. That is your assumption. So, but one more thing you should know, like this, in this question you were asked one assumption. जरूरी नहीं है एक ही assumption में बहुत सारी assumptions भी हो जाती है. So we will do those questions also जिसमें आपको exception find करनी होती है कि कौन सी assumption नहीं है, क्योंकि just remember ऐसा नहीं कि एक ही assumption होगी. लेकिन हाँ, जिस क्वेश्चन में आपको फाइंड करने को बोला है कि कौन सी assumption है, तो उसमें तो एक ही ऑप्शन आंसर होगा. लेकिन कुछ क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि चार पार्ट assumptions हो बट एक पार्ट एक्सेप्शन हो. तो जस्ट आई वांट टू टेल यू कि ऐसा नहीं होता है कि एक ही assumption होती है. बट हाँ, अगर एक ही क्वेश्चन है जिसमें आपको एक पॉइंट assumption का फाइंड करना है, तो चार assumptions उन्होंने नहीं दी होंगी, एक ही दिया होगा. So this was the way you solve assumption questions. We will come up with more such questions and keep trying, but always remember it is going to be an unstated statement hidden which will address your missing link and without which your conclusion cannot survive. So thanks and happy learning.